राम राम जी। दिन की हो चुकी है शुरुआत और भैया सुबह उठे हैं 4 बजे और 4 बजे उठ के अभी बजे हैं सुबह के 9 और हम ऐसी जगह आ चुके हैं मैं आपको दिखाऊंगा बेहतरीन जगह। भाई मैं अभी आ चुका हूँ असवान से 4 घंटे की ड्राइव है। ये है आबू सिंबल एक टेम्पल है जो बनाया था रानी ने। और अभी चलते हैं और देखने के लिए। अभी 4 घंटे भाई वैन में हालत ख़राब रही, रात को बस सही से सो भी नहीं पाया। तो भाई अभी यहीं पे है, थोड़ी देर में अभी चलेंगे। अभी ये जो गाइड खड़ा हुआ है जिसके साथ हम आए थे वो सारी डिस्कस कर रहा है, सारी चीज़ें बता रहा है। तो इससे पूछ के और फिर चलते हैं सीधा अंदर टेम्पल की तरफ और टेम्पल दिखाऊंगा मैं आपको कैसा है कैसा नहीं है। इसकी जो एंट्री की टिकट है वो मिली मुझे 822 इजिप्शियन पाउंड में। तो बस Again, I will be your guide. Our itinerary it will be first we will explain the history of the two temple because it's not allowed for any guide who can explain the temple inside. So we will do the history outside and then I will give you the free time to take a picture inside and outside. Okay? So this is the way to enter inside the temple. Okay. So now we will start to talk about the history of the two temple of Abu Simbel. The first one, and we are actually in the back side of the great temple of King Ramses II, and we call this part concrete dome. And after we will do the details, I will let you know why they built behind every temple a concrete dome. So this is the first temple of King Ramses II, who's the king. He was loved himself more than anyone in the world. Why we say that? Because King Ramses II he built. वॉक करते गाइड से पूछते, गाइड ने काफ़ी चीज़ें बताई। गाइड ने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। गाइड ने बताया है कि जो राजा है उसकी एक वाइफ थी, टोटल 28 वाइफ थी। 28 वाइफ है, में से एक वाइफ के लिए उसने स्पेशली ये टेम्पल बनाया है। भाई आबू सिंबल जो टेम्पल बनाया उसने उसे एक वाइफ के लिए बनाया है। तो अभी और कुछ चीज़ें ब्रीफ करेगा, शायद पता नहीं क्या ब्रीफ करेगा। ये गाइड बताता रहता है यहाँ पे भाई, कुछ और भी ब्रीफ कर रहा है भाई। شكله كده والله قلت له لا معهمش تذاكر دول كلهم مشترين تذاكر. Okay. So this is the two temple of Abu Simbel. The first one we call him the great temple of King Ramses II, who's the king who was loved himself more than anyone in the world. What is the difference between the first statues? The first one from the right hand side was no beard when he was young king, until the last one with a long beard when he became old king. The second temple he was dedicated for her favorite wife, Queen Nefertari. Okay, where the original site of the two temple it was, the first one it was carved inside this mountain here, and it was below 65 meters down. And the second temple it was front of him, facing on his temple, and it was close to the stage, and it was below 65 meters down. And this is the picture of the original site. It was close to the water, and the only way to came to visit the temple it was by the boat. This picture it was in 1961 after they start the project of the high dam. So this is the picture of the small temple, and the big one also it was the same. It was close to the water, and the only way to came to visit the temple it was also by the boat. The two temple in the original site it was carved inside two natural mountains. कुछ चीज़ें मेरी समझ में आई, कुछ चीज़ें मेरे ऊपर से उतर गई। तो ये है भाई जो ये टेम्पल है, आप ये 2 टेम्पल देख रहे हो, ये तो है रानी का टेम्पल और ये है राजा का टेम्पल। ये राजा ने बनाए हैं दोनों टेम्पल, और राजा ने इसलिए बनाए थे ये टेम्पल क्योंकि ये अपने आप को बहुत ही बड़ा सुपीरियर समझता था। और ये जो टेम्पल जो अभी यहाँ आप देख रहे हो, ये टेम्पल यहाँ पे नहीं थे, ये टेम्पल थे वहाँ पे उस पहाड़ी पे, वो सामने जो पहाड़ी देख रहे हो उस पहाड़ी पे थे। और 1964 में इसने मुझे बताया 1964 में ये दोनों टेम्पल डूब गए थे। तो फिर यूनाइटेड नेशन की जो संस्था है उसने इसको हायर किया और उसने ये वहाँ से पहाड़ी उखाड़ी और पहाड़ी उखाड़ के यहाँ ले आया। तो भाई ये अभी आप जो देख रहे हो ये ओरिजिनली वहाँ पे थे, अभी ये यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे इन्होंने ये आर्टिफिशियल लगाए हैं। पहाड़ी वही है, सब कुछ सेम वही है, पर उठा के उन्होंने यहाँ लगा दिए हैं भाई ये। तो ऐसा कुछ इसने मुझे बताया इस टेम्पल के बारे में। और अभी अंदर चलता हूँ, अंदर मैं आपको टेम्पल के बारे में कुछ चीज़ें दिखाऊंगा भी क्या क्या है इस टेम्पल में।
भाई मेरा जो मानना था क्लियोपेट्रा, ये दोनों टेम्पल क्लियोपेट्रा रानी ने बनाए हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये बनाए हैं इस राजा ने। ये जो राजा सामने आपको दिख रहा है, इसकी ये चारों तस्वीरें इस राजा की हैं, और इस राजा ने ही ये टेम्पल बनाए हैं। एक टेम्पल अपने लिए बनाया था, एक टेम्पल अपनी बीवी के लिए बनाया था। इसकी 24 बीवियाँ थी। 24 बीवियों में से एक बीवी जो बहुत इसको ज़्यादा पसंद थी, उसके लिए इसने वो टेम्पल बना रखा है। तो भाई ये है वो मेन जगह जहाँ लोग आते हैं, ये अट्रैक्शन है। और ये नील नदी है, नील नदी के ने इसको डुबो दिया था वहाँ सामने, अब ये यहाँ पे आके बन गया भाई टेम्पल। यहाँ पे उठा के ये दोनों पहाड़ियाँ लगाई गई हैं, स्पेशली एक यहाँ लगाई है और एक यहाँ लगाई है। ये पहाड़ी उठा के लगाई गई है, वहाँ से उठा के यहाँ लगा दी है इन्होंने, यूनाइटेड नेशन की जो संस्था है उसने। तो अभी चलते हैं भाई, कुछ फोटोग्राफीज खींचते हैं यहाँ पे। ये चलते हैं अभी अंदर मंदिर के। ये राजा की एक टूटी हुई है, 2 3 4, ये चारों राजा की फ़ोटो हैं, क्योंकि राजा को बहुत अपने से प्यार था, तो चारों के चारों फ़ोटो राजा ने अपनी लगा रखी है भैया, चारों फ़ोटो। तो अब चलते हैं अंदर, और थोड़ा बहुत मैक्सिमम जो मैं बता सकता था आपको बताया इसके बारे में। तो चलते हैं भाई अभी, क्या क्या है क्या नहीं है। ओह ये अंधेरा हो रखा है, बहुत बढ़िया वाला अंधेरा हो रखा है। इधर भी राजा ने अपनी फ़ोटो लगा रखी है, इधर भी राजा ने अपनी फ़ोटो लगा रखी है, सारे में 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों फ़ोटो राजा की हैं। और अंदर है ये मंदिर, राजा का मंदिर है अंदर। ये सब आकृतियाँ हमने तो भाई पिक्चरों में देखी थी पहले, पिक्चरों में और किताबों में। ये देख सकते हो, आज बड़ा खुशी भी हो रही है कि भाई वहाँ तक पहुँच के ये सारी आकृतियाँ देखने को मिल रही हैं, पूरी की पूरी आकृतियाँ देखने को मिल रही हैं भाई। ये है अंदर राजा का मेन मंदिर, जहाँ राजा ने चारों के चारों फोटो अपनी ही लगा रखी है। तो देख लो भाई, चारों फोटोग्राफ अपनी लगा रखी है राजा ने, देख सकते हो तुम। ये चारों फोटोग्राफ राजा ने अपनी लगा रखी है। बताते हैं, सूर्य की किरण आती है सीधी 22 फरवरी को यहाँ से सीधा, जो 2 इन पे लगती है, इस पे और इस पे नहीं लगती है, क्योंकि ये डार्क वाला है और ये वो है, तो इस पे नहीं लगती है, इन दोनों पे। ऐसा कुछ गाइड ने बताया था मुझे। बहुत सारा टूरिस्ट आ रखा है भाई, बढ़िया। ये एक और पार्ट है भाई इसका, ये देखो, यहाँ सारी चीज़ें राजा की ऐसी लगी हुई हैं कि राजा क्या खाता था, कैसे कैसे खाता था। और ये पूजा कर रहा है, यहाँ भी पूजा कर रहा है राजा। ये राजा है और ये देवता है, तो राजा पूजा कर रहा है देवता की। उसने सारी अपनी तस्वीरें ऐसे गुदवा के लगवाई थी भाई मंदिर में। बहुत ही बड़ा, मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसी चीज़ें बनाना उस समय में बड़ा कारीगरी का काम था, पर इसने करी हैं सारी चीज़ें। जैसे ये बैठा है, देख रहे हो आप सामने, इधर राजा बैठा है और इधर इसको, ये इनका देवता है, जो देवता को कुछ ना कुछ खिला रहा है। तो बड़ा ही वो है ये भाई चीज़ें। से अब सीधा आ गए हैं यहाँ रानी के मंदिर। ये देख लो, ये है रानी का मंदिर। ये सबसे इधर राजा है, फिर रानी है, फिर राजा है, फिर राजा है, फिर रानी है, फिर राजा है। ये वो रानी है जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था राजा। सबसे ज़्यादा प्यार राजा इसी रानी को करता था, तो इसलिए इसका इसलिए इसका मंदिर यहाँ बनाया है इसने अपने साथ में। वहाँ राजा का है और यहाँ रानी का है, तो दोनों मंदिर एक साथ बनाए हुए हैं इसने। अभी चलते हैं अंदर, और अंदर भी कुछ देखते हैं इसमें क्या क्या है क्या नहीं है रानी के मंदिर में। तो ये आगे मंदिर, ये हर स्तंभ पे रानी बनी हुई है, 1 2 3 हर स्तंभ पे रानी बनाई हुई है। और ये है भैया रानी का मंदिर, अंदर से आप देख सकते हो। और ये मोहतरमा फ़ोटो भी रानी की तरह ही खिंचवा रही है, क्योंकि इन्होंने एक की ली हुई है रानी की तरह, और रानी की तरह फ़ोटो खिंचवा रही है। तो भाई अभी चलते हैं अंदर। ये है रानी का मेन मंदिर, वहाँ सामने रानी को बनाया हुआ है, और शायद वो डैमेज भी हो गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें डैमेज हो गई हैं। ये देखो, रानी यहाँ शायद राजा रानी को फूल दे रहा है, राजा रानी को फूल दे रहा है। अच्छी, बहुत बढ़िया कारीगरी कर रखी है उन्होंने।
और ये थी शायद रानी की फोटोग्राफ जो मूर्ति जो टूटी हुई है। उधर राजा खड़ा है, इधर रानी के बीच में मूर्ति जो टूटी हुई है। इधर रानी को उसकी शायद ये मेड है जो उसको ये पहना रही है, क्या बोले, वो पहना रही है ताज। तो ऐसा कुछ है रानी का मंदिर। ये भी ठीक बनाया हुआ है, बढ़िया। दोनों टेंपल, एक वोरी पहाड़ी एक येरी पहाड़ी, और दोनों पहाड़ी एज इट इज उठा के एक इधर रख दी एक उधर रख दी। ये वहाँ होती थी पहाड़ी, सामने दिख रहा है आपको, 1964 में वहाँ थी, और वहाँ से उठा के सीधा यहाँ रख दी। यूनाइटेड नेशन की एक जो संस्था है उसने, आर्कोलॉजिक्स जिसे बोलते हैं, आर्कोलॉजिक्स जो भी बोलते हैं, उन्होंने उठा के यहाँ रख दिया भाई। तो बस ये था छोटा सा टूर अबू सिम्बल का। और अभी हमारा क्या है कि हमें जाना है वापस अबू सिम्बल सिटी में, नॉट असवान सिटी में। ये तो अबू सिम्बल टेम्पल का टूर था, अब जाना है असवान सिटी में। तो चलते हैं अभी असवान सिटी की तरफ। भाई समझ में नहीं आ रहा इनके एयरपोर्ट पे होता क्या है। अभी बस जस्ट असवान के एयरपोर्ट पे पहुंचा हूँ। अब इन्होंने फिर एक नई कहानी सुना दी। जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचा इन्होंने बोला कि भाई 7 बजे से पहले काउंटर ओपन नहीं होगा, और अभी बजे हैं 5। भाई 8 बजे फ़्लाइट है, 5 बजे हैं, तो 3 घंटे पहले ही आना होता है एयरपोर्ट पे। मैं तो 3 घंटे पहले आ गया। अब इन्होंने नई कहानी सुना दी कि भाई नॉट अलाउड टू एंटर। तो अब क्या करें भाई। तो असवान एयरपोर्ट पे अंदर आ चुके हैं भाई। पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा है। ये इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है। तो भाई आज पूरा ऐसा रहा असवान में दिन, मैंने आपको दिखाया। और असवान वैसे बताऊं तो मैं आपको सच पूरा का पूरा रेगिस्तान टाइप है, बहुत कुछ है नहीं है देखने को। एक टूटा सा एक महल बना हुआ है, वो मैं गया नहीं देखने के लिए। और बाकी पूरा का पूरा ऐसा है, क्या बोलूँ, रेगिस्तान। क्योंकि यहाँ से जब असवान से हम वहाँ गए थे 4 घंटे अबू सिम्बल आया, तो मैं सही में अबू सिम्बल देखने था। और फिर मेरा विचार था यहाँ से लक्सर जाने का, पर लक्सर जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। मुझे लगा फिर यहाँ से ट्रेन और बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा, तो मैंने अब यहाँ से वापस कायरो की फ़्लाइट करा ली है। और इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, और मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। भाई लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, पूरा टिप स्पॉन्सर है, देख लो किन्होंने कर रखा है, इन्होंने पूरा टिप स्पॉन्सर कर रखा है। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। जय श्री राम।